Well, hello and good morning, class 11th. Welcome to the new chapter of grammar. I'm going to take up direct indirect speech, or we also call it reported speech. Since it is in your course, I'll be discussing it with you. But you must always remember that unless you remember the tenses, you will not be able to perform the task successfully. So in order to understand this reported speech better, you need to brush up your tenses time and again. Now anyways, I'm going to take up. See, the first thing that you must remember is, first point is, when we say something, we also report it to someone. Report it here, I mean, is, what do I mean by report? When you say something, you have to convey the message to somebody else also. And all the time, you cannot convey the message to the other person. Sometimes the third person carries your message. Sometimes you yourself take the message and tell what the speaker wanted to say. So, the words spoken by the speaker are put in the inverted commas. Inverted commas, you must remember. Inverted commas means like this. We normally use double inverted commas, but that is not necessary. In single inverted commas, we put the name of the book or sometimes a famous statement, etc. And normally we use in indirect speech double inverted commas. So I shall be using double inverted commas here. And what does it mean? It means that the words spoken by the speaker have been written here as they are, without any change. Now, so this must be the first thing. The words spoken by somebody, written as they are put in inverted commas. Inverted commas. Now, for example, if somebody says, I'm going to school, these are the exact words of the speaker. We put them in inverted commas, and that is what is called direct speech. In direct speech, we put them in inverted commas, the words of the speaker. I hope you understand this. When we say something, we also report it to someone. So the words spoken by somebody, written as they are put in inverted commas. For example, Ravi says, I shall not go to school today. Suppose this is the statement. So these words, I shall not go to school today, these words are directly spoken by the speaker, and they have been put here as they are. It is the speaker's words, not anybody else's. Now see, if somebody happens to report the same thing to somebody else, अगर यही बात किसी और ने किसी को बतानी है कि रवि क्या कह रहा है, तो then it will be converted into indirect speech. तो वो डायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखा जाता है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है. डायरेक्ट स्पीच में उसे केवल तब लिखा जाता है जब बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हो, बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हो,
उसने क्या कहा एग्जैक्टली वो वर्ड्स को कोट करने के लिए, तब उसे रिपोर्टेड स्पीच में कोट किया जाता है, वरना नहीं करा जाता है ना। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, अगर जैसे हम कहते हैं कि रवि सेज, बच्चों इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, बल्कि इस वाले में ये समझ लीजिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्ट कर रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब है। अब यहां जो है, यहां हम इसको ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं हम दैट की मदद से। अगर ये असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस में सेज दैट, अभी मैं आपको सेंटेंसेस के बारे में बताता हूं, दैट ही, अब आई और बी के साथ मैंने कहा था शेल आएगा, बाकी ही के साथ शेल नहीं आएगा, तो ही के साथ विल आएगा। ही विल नॉट गो, हालांकि आप लोगों में से कई लोग इसे वुड कर रहे होंगे या शुड कर रहे होंगे, लेकिन वो दोनों गलत हैं, अभी बताता हूं मैं उसका कारण। वुड नॉट, विल, he will not go to school today। अब यहां पर today का that day करने की भी जरूरत नहीं है, इसको मैं बताता हूं आपको। यानी कि इस तरह से जब हम लिखते हैं तो हम स्पीकर के डायरेक्ट वर्ड्स आई शैल नॉट गो टू स्कूल को रिपीट नहीं कर रहे, बल्कि हमने इन्हें अपने शब्दों में कह दिया। रवि सेज दैट ही विल नॉट गो टू स्कूल। अब हम किसी को बता रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि रवि सेज दैट ही विल नॉट गो टू स्कूल। हम ये नहीं कह रहे कि रवि सेज दैट आई विल नॉट गो टू स्कूल। ऐसा कहना गलत होगा, ग्रामेटिकली इट इज इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट ग्रामेटिकली। मैं आपको पहले 5, ये एक बेसिक बात मैंने इसके बारे में बताई कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम दैट लगा के जोड़ते हैं, लेकिन असर्टिव सेंटेंसेस को अभी मैं आपको सेंटेंस टाइप्स पहले बता देता हूं, वरना इसको समझना इतना आसान नहीं रहेगा। चलिए पहले मैं आपको इसके साथ बताता जाता हूं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के साथ, क्योंकि इन सबको अलग अलग ढंग से जोड़ा जाता है। बच्चों बेसिकली 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, और ज्यादातर किताबों में 4 टाइप के लिखे रहते हैं, लेकिन सिंस आई एम टीचिंग यू इन अ वेरी ट्रेडिशनल मैनर, आई विल टेल यू दोस 5 टाइप्स एंड इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड आल्सो दोस 5 टाइप्स। एक्सक्यूज मी। So the very first one is assertive sentence. ये assertive sentence के भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला कहलाता है affirmative और दूसरा कहलाता है negative। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला affirmative का यह है कि, affirmative का एग्जाम्पल, the teachers teach at school। ये affirmative सेंटेंस है बच्चों, ये सीधा सेंटेंस है। जैसे आई एम टीचिंग, यू आर लिसनिंग, दे आर गोइंग, वी आर लर्निंग समथिंग। सो दीज ऑल आर means straight statements and they are called affirmative sentences। अब दूसरा है negative। negative का मतलब not, never या इस तरह के negative words आना, जैसे the students are not studying properly। अब यहां पे बच्चों ये जो not है, इससे ये पता लग रहा है कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। हालांकि दोनों ही तरह के सेंटेंसेस को हम, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। अब जब भी हम असर्टिव सेंटेंस को जोड़ते हैं तो हम सिर्फ दैट लगा के जोड़ते हैं, इसमें जो कनेक्टर रहता है, लेकिन सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेस में कनेक्टर इसमें होता है दैट। यानी कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब से उसको मेन स्टेटमेंट को मिलाता है, इट इज दैट वर्ड होता है वो। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। और अब आ जाते हैं दूसरे टाइप के सेंटेंस में। ये बात आपको समझ में आ जाएगी जब ये रिपीट होगी,
क्योंकि जब मैं इनको करके बताऊंगा तो फिर आप ज्यादा बेहतर समझ जाएंगे. लेकिन स्टिल जस्ट कीप योर फोकस हियर कि व्हाट इज अ स्टेट. इट इज आल्सो कॉल्ड assertive sentence is also called a statement. स्टेटमेंट भी इसे कहते हैं. यानी कि ये या तो सीधी बात बता रहा होता है या किसी चीज को नकार रहा होता है. आई एम टीचिंग या फिर आई एम नॉट टीचिंग. एक एफर्मेटिव है, दूसरा नेगेटिव है. हालांकि दोनों तरह के सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. ये हुई एक बात. ये तो हुआ फर्स्ट टाइप. फर्स्ट टाइप हो गया असर्टिव सेंटेंसेस का. अब आ गया दूसरा टाइप. वो है इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? वो दे आस्क क्वेश्चंस. अब क्वेश्चंस भी दो टाइप के होते हैं बच्चों. एक होते हैं यस नो टाइप. यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं. और दूसरे होते हैं इंफॉर्मेटिव या व्हाट विच व्हेन टाइप. व्हेन इसमें एक मात्र वर्ड होता है हाउ, जो कि डब्ल्यू से शुरू नहीं होता है, वो है हाउ. दो तरह से क्वेश्चंस बनते हैं. एक तो यस नो टाइप के होते हैं. अगर आप किसी भी सेंटेंस को ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करेंगे तो फिर वो यस या नो में उत्तर देगा. ऑक्सिलरी वर्ब लगता है इसमें भी है, लेकिन इसके बाद लगेगा. तो whenever we start a sentence or a statement with an auxiliary verb, for example, are you studying? जैसे पहला टाइप देखिए, are you studying? ये देखिए आर से शुरू हो रहा है. इसका आंसर केवल यस नो में हो सकता है. कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए. जैसे shall we start now? इसका आंसर यस या नो होगा. Are you listening? Are you talking? Are you reading? Are you studying? Are you learning something? इन सब के आंसर्स yes और no में होंगे. Why? Because they have begun with auxiliary verbs. So when the question directly begins with an auxiliary verb, so it can only answer in yes or no. अच्छा, दूसरा जो टाइप है वो what, which, when, why, how टाइप. तो उसका क्या है? जैसे what are you doing? अब इसमें आप yes no नहीं कह सकते. What are you doing? Where are you going? ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं. इनमें क्वेश्चन का आंसर जो है इंफॉर्मेशन में होगा. Where are you going? What are you doing? When did you come? Why did you go there? अब इनके आंसर किसी के भी yes नहीं हो सकते, yes या no नहीं हो सकते. इनके आंसर केवल इंफॉर्मेशन में होंगे, इसीलिए इन्हें इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस कहते हैं. यानी कि दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं. और दो तरह के क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में. इस वाले को हम जो यस नो टाइप होता है, यस नो टाइप को हम इफ या वेदर से जोड़ते हैं. ये कनेक्टर है इसमें बच्चों. इफ या वेदर कनेक्टर होता है. और इधर जो है यस, ये जो इसमें ये क्वेश्चन वर्ड वाले में, ये जो क्वेश्चन वर्ड ही अपने आप में कनेक्टर होता है. क्वेश्चन वर्ड इज द कनेक्टर. इसमें कनेक्टर भी क्वेश्चन वर्ड ही होता है. मैंने आपको क्या क्या बात बताई? पहली बात मैंने ये बताई, when a person speaks something, if the words are written or noted down somewhere or spoken, the exact words are spoken by the speaker, यानी कि बोलने वाले के ठीक वैसे के वैसे शब्द अगर हम कहीं कोट करते हैं तो उसे हम कहते हैं, उसको हम क्लिक क्लिक में रखते हैं. क्लिक क्लिक का मतलब है इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं. और इन्वर्टेड कॉमास का मतलब ये हो गया कि शब्द वही हैं जो स्पीकर ने बोले. लेकिन ऐसा हम करते नहीं. कोई भी राइटिंग जो होती है वो इनडायरेक्ट स्पीच में होती है. और इनडायरेक्ट स्पीच के लिए आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर्स भी बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच में ही लिखे जाते हैं. इसीलिए आप कई जगह पे कहते हैं कि ही सेज आई एम वट एवर इट इज. तो इस तरह का ये चलता नहीं है. ये गलत तरीका है आंसर करने का. तो आर यू स्टडिंग? यस और नो. ये हो गया आपका यस नो टाइप क्वेश्चन. और ये व्हाट आर यू डूइंग, ये हो गया क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव टाइप. तो इसका जो कनेक्टर होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए, इसका कनेक्टर जो होता है वो क्वेश्चन वर्ड ही होता है. जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड टू हिज फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर आर यू गोइंग. तो ही आस्क्ड हिज फ्रेंड वेयर ही वाज गोइंग.
तो इस तरह से वेयर की जगह वेयर ही रहेगा, अब दैट नहीं लगेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो सेंटेंस पहचानना भी बहुत जरूरी है, सेंटेंसेस पहचानना जरूरी है। पहली चीज टेंसेस जानना और दूसरी चीज सेंटेंसेस को पहचानना, उनके टाइप को पहचानना। अब मैं एक और टाइप ले लेता हूं यहाँ पर, वो है थर्ड टाइप ले लेता हूं, वो है कमांड या रिक्वेस्ट। उसमें दोनों चीज आती हैं, कमांड या रिक्वेस्ट। उन्हें हम कमांड एंड रिक्वेस्ट, इनका भी तरीका दूसरा है। जैसे ये भी दो तरह की होती है, इसमें एक तो कमांड हो गया और दूसरी हो गई रिक्वेस्ट। कमांड एंड दूसरा हो गया रिक्वेस्ट। तो इन दोनों में कॉमन कनेक्टर होता है टू, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको जो रिपोर्टेड स्पीच से मिलाएगा, यानी कि वो जो कोटेड स्पीच है जो कॉमा के अंदर की है उसको मिलाने के लिए कनेक्टर जो होगा इनमें वो होगा टू। हाँ, ये अलग बात है कि कमांड है तो कमांडेड, जैसे माना उसने, जैसे हमने कहा कि he said to his men march forward। सपोज किसी तो इसमें ही कमांडेड हिज मेन भी कह सकते हैं, ही ऑर्डर्ड हिज मेन भी कह सकते हैं, फिर टू मार्च फॉरवर्ड, यानी कि सिर्फ टू लगा के ये बन जाएगा टू मार्च फॉरवर्ड। लेकिन अगर हम कहें कि द मॉनिटर said to the students please come out of the class। अब ये जो वर्ड प्लीज है, इससे हम इसे कमांडेड नहीं कहेंगे, हम कहेंगे द मॉनिटर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट्स टू कम आउट ऑफ द क्लास। रिक्वेस्टेड कह लिया तो प्लीज तो दोबारा लगेगा नहीं। द मॉनिटर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट्स टू कम आउट ऑफ द क्लास। इस तरह से इसे हम बनाएंगे। और इसे बच्चों, ये जो थे मैंने 3 टाइप के सेंटेंसेस आपको बताए, और मैं इसमें फिर बातें रिपीट कर दूं। पहली चीज तो है कि टेंसेस सीखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जब हम किसी बोलने वाले की स्पीच को अंदर रखते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, उसे भी रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, लेकिन हम उसे रिपोर्टेड स्पीच नहीं कहेंगे क्योंकि उससे कंफ्यूजन बनता है। हम उसे कोटेड स्पीच कहेंगे, यानी कि कोट की हुई स्पीच, वो शब्द उसके वैसे के वैसे ही। दूसरी बात, हमें रिपोर्टिंग वर्ब से कोटेड स्पीच को जोड़ना होता है। उसके जोड़ने के तरीके के लिए आपको सेंटेंस का टाइप पहचानना जरूरी है। 5 टाइप के सेंटेंसेस मैं बताऊंगा आपको, 3 मैंने बता दिए। इनमें हर कोई सेंटेंस अलग अलग तरीके से जुड़ता है। जैसे असर्टिव सेंटेंस है तो दैट से जुड़ेगा। अगर वो दूसरा इंटरोगेटिव है तो या तो वो इफ या वेदर से जुड़ते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चंस। और अगर वो क्वेश्चन वर्ड वाला है तो क्वेश्चन वर्ड से ही सीधा जुड़ता है, वो उसका कनेक्टर क्वेश्चन वर्ड ही होता है। और तीसरा मैंने बताया कमांड और रिक्वेस्ट। कमांड और रिक्वेस्ट दोनों वैसे तो जुड़ते टू से ही हैं, लेकिन इनकी भाषा अलग हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ही कमांडेड हिज मेन कहेंगे, ही सेड टू हिज मेन, जैसे हमारा कमांडर ने कहा अपने आदमियों से, तो हम ही ऑर्डर्ड हिज मेन या ही कमांडेड हिज मेन टू मार्च फॉरवर्ड। टू से जुड़ गया, देखिए टू मार्च फॉरवर्ड। ऐसे ही द मॉनिटर सेड टू द स्टूडेंट्स प्लीज कम आउट ऑफ द क्लास। अब ये प्लीज कह रहा है तो इसलिए द मॉनिटर रिस्पेक्टफुली टोल्ड द स्टूडेंट्स। हम जब भी इसके आगे जो है ऑब्जेक्ट लगा होता है उसको हम टोल्ड द स्टूडेंट्स कहते हैं। तो द मॉनिटर टोल्ड द स्टूडेंट्स या फिर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। यहाँ पर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स कहिए टू कम आउट ऑफ द क्लास, क्योंकि हमने रिस्पेक्टफुली वर्ड यहाँ ले लिया तो इसलिए प्लीज दोबारा नहीं यूज होगा,
to come out of the class. I hope you could understand this simple lesson consisting of 3 types of sentences. Please learn them well, and before that, tenses are a must. Otherwise, you'll keep getting confused in further exercises that I'm going to take up with you of grammar, because we shall be definitely starting at some point of time literature also, since I don't have the books right now of literature, but I shall be beginning it soon and be trying to manage it. Thank you so much.